ایک بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ایک خواب جو اس کی تباہی کی پیشگوئی تھی، اور ایک بچہ جس کی پیدائش روکنے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ یہ ہے وہ کہانی جہاں خدائی قہر اور رحمت کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ جو قرآن میں احسن القصص کہلاتا ہے۔ فرعون مصر کی زمین پر سرکشی اور طغیانی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک گروہ بنی اسرائیل جو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی اولاد تھے، انہیں ذلت اور غلامی کی زندگی دے رکھی تھی۔ اسے اپنے درباری کاہنوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے تخت و تاج کو ملیا میٹ کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نو مولود لڑکے کو ذبح کر دو، صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ اور یوں مصر کی زمین پر ایک ظلم کی رات چھا گئی۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی قتل عام کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اپنے لال کو کیسے بچایا جائے؟ پھر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک بات ڈالی گئی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر، ہم اسے تیرے پاس واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اور یوں ایک ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو صندوق میں سلا کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ دریا کی لہریں وہ صندوق لے کر چلیں اور فرعون کے محل کے کنارے پر لا پھینکا۔ فرعون کی لونڈیوں نے اسے دیکھا۔ وہ صندوق اٹھا کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سامنے پیش کیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر سے ایک ایسا چہرہ نکلا جو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آسیہ کی نظر جیسے ہی اس معصوم بچے پر پڑی، ان کے دل میں فوراً اس کی محبت جاگ گزیں ہو گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری نہیں، اور یہی اس کی بد کلامی اس کے لیے ہلاکت بن گئی۔ اور یوں وہ بچہ جسے قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے مار ڈالے تھے، اب اس کے اپنے گھر میں اس کے اپنے بستر پر پلنے لگا۔ لیکن اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار تھا۔ اس کا لال کہاں ہے؟ اگر اللہ اس کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو قریب تھا کہ وہ سب راز فاش کر دے، لیکن وہ مومن تھیں، صبر کیا۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، خبر لے کر مجھے آگاہ کرتی رہے، اور وہ لڑکی دور سے اپنے بھائی کی خبر لیتی رہی، محل میں داخل ہوئے بغیر۔ فرعون کے محل میں معاملہ الٹ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، وہ بھوکے رونے لگے۔ محل والے پریشان ہو گئے۔ تب اچانک وہ لڑکی سامنے آئی اور کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں گے اور اس کی خیر خواہی کریں گے؟ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی، اور پھر وہی دودھ پلانے والی ماں سرکاری دعوت پر محل میں آئی، اور جیسے ہی ماں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ ماں جس کا بچہ کھو گیا تھا اب اسے سرکاری تحفظ کے ساتھ معاوضہ لے کر اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم بنی اسرائیل سے، دوسرا فرعون کی قوم قبطی سے۔ بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ غصے میں انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا، لیکن وہ ایک مکہ ہی تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، مگر تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ شیطان کا بہکاوا تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے، اور اللہ نے جو بخشنے والا مہربان ہے انہیں بخش دیا۔ اگلی صبح موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ حالت میں شہر آئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، وہی اسرائیلی شخص کسی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تو صریح گمراہ ہے،
लेकिन इस बार वो इसराइली बेवकूफ़ बोला कि ए मूसा, क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो जैसे कल एक शख्स को मार डाला था? तुम तो बस मुल्क में जालिम बनना चाहते हो। ये सुनते ही राज फाश हो गया। वो किब्ती जो लड़ रहा था उसने ये बात सुन ली और वो भागता हुआ फिरौन के पास पहुंचा कि मूसा ने तुम्हारे आदमी को कत्ल किया है। खबर फैल गई। फिरौन के कारिंदे मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने निकले, लेकिन उससे पहले एक नेक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा कि ए मूसा, सरदार लोग तुम्हें कत्ल करने का मशवरा कर रहे हैं, फौरन निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा बेसरो सामानी की हालत में शहर से निकले। उन्हें ना रास्ता मालूम था ना मंजिल, सिर्फ जबान पर एक दुआ थी कि ए मेरे रब, मुझे जालिम लोगों से बचा ले। और अल्लाह ने उनका रुख मोड़ दिया मदियन के रास्ते पर। इंतहाई थकन और भूख के बाद वो मदियन के एक कुएं पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक मंजर देखा। चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और एक तरफ दो लड़कियां अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे ना चले जाएं और हमारे वालिद बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। कुएं के मुंह पर एक अजीमुश्शान पत्थर रखा हुआ था जिसे 10 आदमी मिलकर हटाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही उसे उठाया, पानी का डोल निकाला और उन लड़कियों की सारी बकरियों को पानी पिलाया। फिर वो थक कर एक दरख्त के साए में जा बैठे और दुआ मांगी कि ए मेरे रब, जो भलाई तू मुझ पर भेजे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद इनमें से एक लड़की चली आई और कहने लगी कि मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपने हमारे लिए जो पानी पिलाया है उसका बदला दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना किस्सा सुनाया तो बूढ़े ने कहा, खौफ न करो, तुम जालिम कौम से निजात पा चुके हो। इसके बाद एक लड़की ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, इन्हें मुलाजमत पर रख लीजिए। बेशक आप जिन्हें रखें इनमें से बेहतर वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। बूढ़े ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करोगे और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, इंशाअल्लाह तुम मुझे नेक लोगों में पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरे और आपके दरमियान तय हुआ। मैं जिस मुद्दत को भी पूरा करूं मुझ पर कोई सख्ती नहीं होगी और जो हम कह रहे हैं अल्लाह उस पर गवाह है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ पूरे 10 साल तक बकरियां चराईं, वफा और हुस्न सुलूक की वो मुकम्मल मुद्दत जो उन्होंने पूरी की। ये दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं और वो जो बूढ़े शख्स थे वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों लड़कियों में से एक की शादी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से करवा दी थी। जब मुद्दत पूरी हो गई, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बकरियों में से उनको बकरियां दे दी थीं और एक असहाब भी दिया जो कि जन्नत का असा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को लेकर मिस्र वापसी के सफर पर निकले, लेकिन रास्ते में एक इंतहाई तारीक और ठंडी रात आ गई। आग जलाने की कोशिश नाकाम, सख्त भूख और प्यास, पूरी रात अंधेरे और खौफ में गुजरी। फिर जब सुबह करीब थी, दूर कोहे तूर की जानिब एक रोशनी चमकती दिखाई दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल से कहा कि तुम ठहरो, मैंने आग महसूस की है, शायद मैं तुम्हारे लिए वहां से कोई खबर ले आऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम सेंक सको। वो रोशनी की तरफ चल पड़े, लेकिन वो कोई आम आग ना थी, वो तो नूर था, खुदाई नूर। और वहां एक मुकद्दस वादी तुवा में एक सरसब्ज दरख्त से एक आवाज आई जो तारीख बदलने वाली थी। आवाज आई, ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, तमाम जहानों का परवरदिगार, और बेशक मैंने तुम्हें चुन लिया है, सो सुनो जो तुम्हारी तरफ वही किया जाएगा। बेशक तुम मुकद्दस वादी तुवा में हो। फिर आवाज आई, और तेरे दाएं हाथ में ये क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। आवाज आई, इसे डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला और वो देखते ही रह गए। वो लाठी एक जिंदा तेज रफ्तार खौफनाक अजदहे में बदल गई। मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से पीठ फेर कर भागने लगे। आवाज आई, ए मूसा, आगे आ और डरना, बेशक तू अमन पाने वालों में से है। अपना हाथ बढ़ा और उसे पकड़ ले, हम इसे उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। फिर आवाज आई,
और अपना हाथ अपने गरेबान में डाल, वो बगैर किसी ऐब के सफेद चमकता हुआ निकलेगा और खौफ के वक्त उसे वापस समेट लो। ये 2 निशानियां थीं, 2 खिलाफे आदत मौज से, लाठी का अजदहा बनना और हाथ का चमकते हुए चांद की तरह सफेद हो जाना। अब मूसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम मिशन सौंपा जा रहा था। आवाज आई, ये तेरे रब की तरफ से 2 निशानियां हैं, इन्हें लेकर फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ, बेशक वो नाफरमान कौम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। उनके जरिए मेरी पुश्त मजबूत कर और उन्हें मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम बकसरत तेरी तस्बीह करें और तुझे बकसरत याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने वाला है। जवाब आया, ऐ मूसा, तेरी दुआ कबूल कर ली गई। और अल्लाह ने हिदायत की कि दोनों फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है, फिर उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। दोनों फिरौन के दरबार में पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक हम तुम्हारे रब के रसूल हैं, तू बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उन्हें अजाब न दे। हम तेरे पास तेरे रब की जानिब से निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। फिरौन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की और तुमने हमारे यहाँ उम्र नहीं गुजारी, और फिर तुमने वो काम किया जो तुमने किया और अब तुम नाशुक्रे बन गए हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे हुक्म अता फरमाया और मुझे रसूलों में से बना दिया, और यही वो एहसान है जो तुम मुझ पर जता रहे हो कि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, फिर रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार है, अगर तुम यकीन रखते हो। फिरौन अपने दरबारियों से मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम सुनते नहीं हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब। फिरौन ने तंजिया कहा, बेशक तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है जरूर दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, मशरिक और मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार, अगर तुम अक्ल रखते हो। फिरौन ने चैलेंज करते हुए कहा, अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, एकदम फिर वही खौफनाक अजदहा बन गया और उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो चमकता हुआ सफेद हो गया। फिरौन डराने की कोशिश करते हुए बोला, ये तो निहायत माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दे। अब तुम्हारी क्या राय है? दरबारियों ने साजिशी लहजे में कहा, इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में पैगाम रसां भेजिए कि वो तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आएं। फिरौन ने रजामंदी जाहिर की और कहा, ठीक है, अगर जादूगर गालिब आए तो इन्हें इनाम दूंगा और वो मेरे मुकर्रबीन में शामिल हो जाएंगे। और फिर वो दिन आ गया, यौम ज़ैनत, चाश्त का वक्त। पूरा मिस्र इकट्ठा हो गया। लोग कह रहे थे कि अगर जादूगर गालिब आए तो हम उनके पैरोकार हो जाएंगे। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, या तो तुम डालो या हम डालें। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे तमाद लहजे में कहा, तुम ही डालो, और उन्होंने डाल दिया। उनकी तमाम रस्सियां और लाठियां लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। वह सब सांप बनकर दौड़ती नजर आने लगीं। लोग हैरत और खौफ से दंग रह गए। ये तो बहुत बड़ा जादू था। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ, कहीं लोग धोखे में ना आ जाएं। तब आवाज आई, खौफ न करो, बेशक तू ही गालिब रहेगा, और जो तेरे दाएं हाथ में है उसे डाल दे, वो जो कुछ उन्होंने बनाया है निकल जाएगा। ये महज जादूगर का फनकारी है, और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं हो सकता। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली, और वो देखते ही देखते एक हकीकी, जिंदा और खौफनाक अजदहे में बदल गई, जो तेजी से जादूगरों की बनाई हुई तमाम चीजों की तरफ बढ़ा और उन्हें एक एक करके निगलने लगा।
ये देखकर तमाम जादूगर सजदे में घिर गए और यक जुबान होकर कहने लगे, हम ईमान लाए जहानों के रब पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन गुस्से से कांपने लगा। उसने कहा, क्या तुम ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? बेशक ये तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। फिर धमकी देते हुए बोला, सो मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और पायदार है। एक जादूगर ने बेखौफी से जवाब दिया, तू हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम तो अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ कर देगा, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। दूसरे ने कहा, तू हमें तरजीह नहीं दे सकता इस वाज़े दलील पर जो हमारे पास आ चुकी है और उस जात पर जिसने हमें पैदा किया। तू सिर्फ इसी दुनिया में ही फैसला कर सकता है। हम अपने रब पर ईमान लाए हैं। और तीसरे ने आखिरी दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र की बारिश कर और हमें मुसलमान ही वफात दे।